وفاقی کابینہ نے بجٹ تجاویز کی منظوری دے دی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں 7% اضافے کی منظوری دی گئی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، IMF نے پاکستان کی معاشی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اگر ہم مزید محنت کریں گے تو ترقی ہمارا مقدر ہوگی۔ بجٹ کے معاملے پر MQM اور پیپلز پارٹی نے غیر مشروط سپورٹ کیا۔ قومی وحدت، یکجہتی اور اتحاد کا اس سے شاندار ثبوت نہیں مل سکتا۔ تمام تر معاشی چیلنجز کے باوجود بہتر بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے دیگر ارکان کا بجٹ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ نوید قمر بجٹ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں گلگت بلتستان میں ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مینڈیٹ نہیں چھیننے دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش ہو اور ہم تالیاں بجاتے رہیں۔ اعجاز جاکرانی کا کہنا تھا بجٹ اجلاس میں صرف نوید قمر جائیں گے، قومی مفاد کے فیصلوں پر حکومت کے ساتھ ہیں، مسلم لیگ نون کے مسئلوں میں ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کے تحفظات دور کرنے کے لیے نون لیگ کے وفد کی ان کے چیمبر آمد، چیئرمین پیپلز پارٹی سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کی مشیر انا ثنا کہتے ہیں گلگت بلتستان میں صاف شفاف انتخابات ہوئے، کسی کا مینڈیٹ چوری نہیں کیا گیا۔ اگر کچھ حلقوں میں ری پولنگ ہو رہی ہے تو اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 18,771 ارب روپے ہونے کا امکان، 8,054 ارب روپے قرضوں اور سود پر خرچ ہوں گے۔ پینشن کے لیے 1,169 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ دفاعی بجٹ 3,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ ذرائع کا کہنا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ 2 الگ الگ شرح سے ہو سکتا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس میں 10% تک ریلیف دیے جانے کا امکان۔ بجٹ میں 220 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی تجویز۔ بجٹ میں زرعی شعبے کو ریلیف دینے کی تجویز، کسانوں کو DAP میں سبسڈی دینے کا فیصلہ، کسانوں کو بجلی کی قیمت میں بھی ریلیف دیا جائے گا، سولر پینلز پر سیلز ٹیکس نہ بڑھانے کا فیصلہ، پراپرٹی کی خرید و فروخت میں ٹرانزیکشن ٹیکس کی شرح کم کی جائے گی۔ IMF کے سپر ٹیکس میں کمی کی مخالفت، نائب وزیر اعظم اور مشیر صنعت کی سپر ٹیکس میں کمی کے لیے کوششیں۔ IMF نے کارپوریٹ انکم ٹیکس کی شرح 29% سے کم کر کے تجویز بھی مسترد کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر کلائمیٹ لیوی دگنی ہوگی، 90 ارب روپے جمع کیے جائیں گے۔ 2000 cc اور زائد کی گاڑیوں پر 10 سے 19.5% تک کاربن لیوی عائد ہو سکتی ہے۔ بجٹ میں کوئلے کی درآمد پر ویلیو ایڈیشن ٹیکس 3% سے کم کر کے 1% کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF نے کوئلے پر ویلیو ایڈیشن ٹیکس 1% کرنے کی اجازت دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے سیمنٹ، بجلی اور دیگر صنعتوں کے لیے درآمدی کوئلہ سستا ہونے کی توقع ہے۔ اس کمی سے صنعتوں کی پیداواری لاگت کم ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے MQM کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کراچی اور حیدرآباد کے لیے اسپیشل پیکج پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کراچی کے لیے 20 ارب اور حیدرآباد کے لیے 5 ارب کا ترقیاتی پیکج دیا جائے گا۔ ML1 بجٹ میں شامل ہے، منصوبہ 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا مانتے ہیں سندھ کا گورنر MQM کا ہونا چاہیے، اس پر مزید بات کریں گے۔ بلدیاتی ترمیم پر MQM کے ساتھ مل کر PP سے بات کی جائے گی۔ بجٹ پر ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ چیئرمین آباد حسن بخشی نے کہا پاکستان میں ہر شخص سوچتا ہے اس کا کم از کم ایک گھر ہو۔ ہم حکومت سے کچھ نہیں مانگ رہے، بس ایک مطالبہ ہے، ہمیں کام کرنے دیا جائے۔ ہر پاکستانی کو ڈالر میں گھر خریدنے کی اجازت دی جائے۔ اوورسیز پاکستانی ڈالرز میں گھر خریدیں گے تو اس پر کوئی قبضہ بھی نہیں کر سکے گا۔ صدر کسان اتحاد خالد کھوکر کہتے ہیں ہماری پیداواری لاگت خطے میں سب سے زیادہ ہے،
पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां आटा, चीनी और गंदुम पर सियासत होती है। आधा तीतर आधा बटेर की पॉलिसी ने ज़राअत को तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान, नवीद कमर और दीगर कमेटी रूम पहुंच गए। बजट से मुतालिक हुकूमत से मुज़ाकरात पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए का कहना है बजट इजलास के दौरान पीपी की हिकमत अमली भी तय होगी। पीटीआई का बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज किया जाएगा। ईरान के साथ अच्छी डील तक पहुंच चुके हैं। मुआहदे की दस्तावेज तैयार है। तफसीलात कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रवां हफ्ते के आखिर तक ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं। मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। अरब ममालिक के रहनुमाओं और नेतन्याहू से बात हुई है। ईरान से मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब यूरोप में हो सकती है। पाकिस्तान अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियत हैं। अभी तक अमेरिका के साथ किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई का कहना है जब तक तमाम निकात पर इत्तेफाक न हो जाए दस्तखत की बातें बेमानी है। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है लेकिन अमेरिका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहा है। कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में फाल किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिकी इक़दाम सिफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान में होने वाले मुआहदे को इस्लामाबाद मुआहदा कहा जाएगा। जंगबंदी में 60 दिन की तौसी होगी। इतलाक लबनान में भी होगा। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने मुमकिना मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। मुआहदा होते ही आबना हुर्मुज बगैर किसी टोल या फीस के दोबारा फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। बदले में ईरान पर पाबंदी में नरमी की जाएगी ताकि वो 60 दिन तक अपना तेल फरोख्त कर सके। इस दौरान जौहरी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुआहदे के मुताबिक ईरान वादा करेगा कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा और अफजूदा यूरेनियम के मामले पर जारी तनाज़ो को हल करेगा। समंदरी तिजारत और जहाजों की आमदोरफ्त जंग से पहले वाली सतह पर वापस आ जाएगी। अमेरिका भी अपनी नाकाबंदी खत्म कर देगा। मुआहदे पर दस्तखत होते ही ईरान मुंजमद असासों की फौरी बहाली का ख्वाहां है। ईरानी हुकूमत जो खेल खेल रही है वो सिफर से हार जाएगी। अमरीकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसेनेट ने एक्स पर लिखा अमरीकी इत्तेहादियों के नुकसान की कीमत ईरानी फंड से अदा की जाएगी। आबना हुर्मुज अथॉरिटी को अदा किए जाने वाले किसी भी टोल की ईरानी फंड से तलाफी की जाएगी। ईरान का हर हमला उन मुआशी और माली नताइज को मजीद गहरा करेगा जिनका उसे सामना है। ईरान से इत्तेहादियों को पहुंचने वाले किसी भी नुकसान की कीमत ईरानी अकाउंट से हासिल फंड से अदा की जाएगी। नायब वजीर आजम इसाक डार का यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कालास से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाक डार और काया कालास ने अमरीका ईरान मफाहमत से मुताल्लिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने जल्द पायदार मफाहमत और पुरअमन हल की उम्मीद का इजहार किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स की 1,72,000 की सतह बहाल। इंडेक्स 3200 से जायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,72,944 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक माहिरीन का कहना है मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी और बजट की मुस्बत खबरों से इन्वेस्टर्स में एतमाद देखा गया। सिंध हुकूमत आलमी मयार का अमराज कल्ब का इलाज मुफ्त फराहम कर रही है। NICVD लाखों अफराद के लिए उम्मीद की अलामत बन चुका है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की NICVD और HSMH मलीर से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा सिंध हुकूमत दिल के मरीजों को बर वक्त मयारी इलाज की फराहमी में कोशा है। कोई भी मरीज माली मुश्किलात के बायस इलाज से महरूम नहीं रहेगा। वजीर सेहत
अजरा पेचोहो ने कहा, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कार्डिक सर्जरी के लिए मौसर रेफरल सिस्टम कायम किया जाएगा। मुलजिम सोहेल और जिशान अनमोल पिंकी की ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। पुलिस का अनमोल पिंकी केस में अदालत में बयान, कहा पिंकी के अकाउंट फ्रीज होने के बाद मुलजिम समीर की मदद से ट्रांजैक्शन की जाती थी, उन्हीं के अकाउंट में मनशियात के खाम माल की पेमेंट की जाती थी। मुलजिमा अनमोल पिंकी का छोटा भाई नासिर 2016 में समीर के पास मुलाजिम था। मुलजिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी कायम किया जाएगा। अदालत ने मुलजिमा की सहूलतकारों की दरखास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। कराची फेडरल बी एरिया में 4 मुलजिमान सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन लेकर फरार। कैश वैन में 30 करोड़ रुपए मौजूद थे। पुलिस का कहना है वैन का अमला चाय पीने रुका तो 4 मुलजिमान कैश वैन लेकर फरार हो गए। इब्तदाई तहकीकात में सिक्योरिटी कंपनी के चीफ क्रू वाजिब पर शुबा है, वो भी मुलजिमान के साथ फरार हो गया। अतराफ के इलाकों की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की जा रही है। गवादर के साहिल पर खाम तेल से मुशाबा मवाद फैल गया। माहिरीन का कहना है समंदर में खाम तेल से भरे जहाज के टूटने का खदशा है। खाम तेल की मौजूदगी से समंदरी हयात को खतरात लाहक हैं। स्वात मोटरवे पर कार ने मोटरवे पुलिस के अहलकारों को कुचल दिया। एक पुलिस अहलकार समेत 2 अफराद जहां बहक, 4 जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। नवाब शाह में जमीन के तनाजुर पर फायरिंग से 2 भाई कत्ल, शनाख्त अरसलान और सरमद के नामों से हुई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप में बिलावल भुट्टो ब्राजील के सपोर्टर नेमार की जर्सी पहनकर मिनी ब्राजील लियारी के इंटरनेशनल स्टेडियम में स्क्रीन लगाने का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, स्टेडियम आए और वर्ल्ड कप के हर मैच से लुत्फ उठाएं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की लियारी के फुटबॉल ग्राउंड आमद, शहरियों के साथ फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच देखा। कहते हैं लियारी पाकिस्तान में फुटबॉल का तारीखी मरकज है। लियारी से हमेशा आलमी मयार के खिलाड़ी सामने आए हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के मुस्तकबिल के फैसले के लिए लाहौर में आज बड़ी बैठक होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अहम मुलाकातें करेंगे। शान मसूद की कप्तानी के हवाले से हतमी फैसला भी किया जाएगा। टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियों का भी इम्कान। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर इंटरनेशनल का ओहदा मिलने का इम्कान। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल 2.03% कमी के साथ $88.54 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 1.85% कमी से $86.08 फी बैरल पर आ गया। पाक बहरिया के फ्लीट का जिद्दत की जानिब अहम कदम। पहली हंगूर क्लास आबदोज PNS M हंगूर कराची पहुंच गई। आबदोज जदीद जंगी निजाम, मॉडर्न सेंसर्स, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपलेशन, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। हंगूर एक नाम नहीं, पाकिस्तान की समुद्री ताकत, कौमी अज़्म और दिफाई सलाहियत का इस्तारा है। दिफाई खुद एतमादी और जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत। ये पाकिस्तान और चीन में मजबूत स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन की अक्कास है। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मेला आज से एस्टन में सजेगा। इफ्तिताही मैच में मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका की टीम्स मध्य मुकाबले आएंगी। 12 टीम्स के दरमियान टाइटल के हुसूल के लिए 33 मैचेस खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम अपने टाइटल का दिफा करेगी। पाकिस्तान विमेंस टीम इतवार को भारत के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की टीम ने इंटरनेशनल पीस स्टिकिंग मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल कर ली। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट बरतानिया में पाकिस्तान आर्मी टीम ने तमाम बड़े एजाज़ात अपने नाम किए। पाकिस्तान आर्मी टीम ने ओवरऑल टीम ट्रॉफी, बेस्ट पीस स्टिकर और बेस्ट ड्राइवर अवार्ड जीत लिया। PMA की नुमाइंदा टीम ने 16 बैनुल-अक़वामी फौजी टीमों को पीछे छोड़ दिया। मेजर हैदर गुलजार की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया।